हेलो। आज के दर्शकों, हम आपको नया टॉपिक लेके आए हैं और यंग डायनामिक फैकल्टी फ्रॉम एडोलसेंट हेल्थ एकेडमी आईआईपी से हैं हमारे साथ डॉक्टर सुनीता मनचंदा। आप हमारे साथ लाइफ स्पान डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगी। एक बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट है जो कई बच्चे पढ़ने में कतराते हैं और समझ नहीं पाते। और हमें पूरी उम्मीद है कि आज सुनीता जी हमको बहुत अच्छे से और दर्शकों को, पीडियाट्रिशियंस को और एडोलसेंट फिजिशियन को अच्छे से उसके बारे में हमको बताएंगी। सुनीता जी गुड़गांव से हैं, दिल्ली से हैं, एंड शी सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एंड एडोलसेंट स्पेशलिस्ट, जैन सैंत फूल चंद जी चैरिटेबल हॉस्पिटल से आपका अटैचमेंट है। शी वॉज वाइस चेयरपर्सन एडोलसेंट हेल्थ एकेडमी हरियाणा, Executive Board Member, NCPDA 2526, North Zone Coordinator, President IIP Gurgaon, State Coordinator IIP NNF NRP FGM Project 2018-20, 2024-26. She was Chairperson E-Poster Committee, Harcon and Harcon 2015, Member of Editorial Board, Haryana Paddy News 2013, Workshop Coordinator, Program Coordinator, Co-Chairperson CME Committee, Paddycon 2012. Faculty and Master Trainer of MKU, AYA, SAT, CSA and POSCO Adolescent. Counseling, Academic Contributor, Teachers Module, AHA, IIP and the Child. Research and publication article in Indian Journal of Adolescent Medicine 2019 and magazine like E-Adolescent, Haryana Paddy News, Child India. Contribution in books presented in papers and poster in national and international conference. ITPA course material, IIP, AHA textbook and adolescent pediatric counseling skill. Lot of knowledge she is going to share with us. Our aim of Dr. Tutia Talk Show is not self-appraisal, but to update the society. If you like, subscribe our channel. Your suggestion, comments are always welcome, and we will definitely respond to your comments. And your queries will be responded by Dr. Sunita ji, or by me, or by both of us. Over to Sunita ji now to Thank you, share sir. her slide. हाँ जी सर. You can share your slide, please. Yes sir. So सबसे पहले तो सर मैं आपका धन्यवाद करूंगी मुझे अपने डॉक्टर टुटेजा शो पर इनवाइट करने के लिए. आई एम फीलिंग privileged that I have been invited for this, and I will try my best and make my best efforts about this topic which you said थोड़ा difficult है, but I will try to make it easier. Right. हाँ जी सर. What do you mean by the concept of lifespan development? Right. Lifespan development has got three words. Life matlab जीवन, span matlab time limit, duration, because the law of life is that nothing is here for forever. So it means that no one stays in this world forever. So इसका क्या मतलब है कि हम यहाँ संसार में आए हैं एक लिमिटेड टाइम के लिए. सो इफ ए पर्सन इज बॉर्न इज अबाउट टू डाई, ये तो एक फैक्ट है ही है. बट ड्यूरिंग दिस जर्नी ऑफ लाइफ द वर्ड आता है डेवलपमेंट. दैट डेवलपमेंट मीन्स द प्रोग्रेस, how we progress. But if we call it as a kind of a definition, so then it is called as a methodical intra-individual change associated with progressions corresponds to the age. Now, during the journey of life, various forces comes into action. हमारा बायोलॉजिकल जेनेटिक्स हम सबको पता है, बट हम डिटेल में यहाँ आज नहीं बात करेंगे उस बारे में. फिर हमारा एनवायरमेंट, वी ऑल नो दैट, एंड सोसाइटी डेफिनेटली, फैमिली, पीयर्स, को वर्कर, ये सब चीजें हैं
जो इस जर्नी की लाइफ में अफेक्ट करती हैं। और सबसे बड़ी अगर हम मानते हैं तो वो है नेचर। नेचर का भी एक, किसी भी चीज की एक्सेस हो जाती है तो नेचर उसको कम करने की कोशिश करती है। तो ये सारे फोर्सेस हमारी डेवलपमेंट में चल रहे होते हैं। तो बॉडी फिजिकल चेंजेस जाती है, विच मीन्स सेक्स, सेक्सुअलिटी, जेंडर, सारे इश्यूज आते हैं। कॉग्निटिव, हमारा कॉग्निशन, समझ हमारी चेंजेस होती रहती है, एंड वी गो थ्रू साइकोलॉजिकल, सोशल एंड इमोशनल। ऑल दिस कंट्रीब्यूट द लाइफ स्पैन डेवलपमेंट, जिंदगी की यात्रा जिसको हम कहेंगे लाइफ स्पैन डेवलपमेंट। लेकिन what I am doing is today's in this talk is basically focusing on two parts of the development, especially one is psychosexual development and another is psychosocial development. These two aspects are by psychologists and psychoanalysts who are the most important, who had played a most important role in the field of psychology. One is Sigmund Freud with psychosexual development, and another one is Erik Erikson. What I'm going to do in the today's talk, focusing on a small amount of a psychosexual development, but more of a psychosocial development, because एज ए पीडियाट्रिशियन ये बहुत जरूरी है आज की डेट में जब मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं। सो दैट इज सर, ये है जिंदगी में लाइफ स्पैन जो हम ग्रेजुअली आगे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टॉक चलेंगे सर। हाँ जी सर। What inspired Erik Erikson to study human development? Right. So this is like very, very like I personally, when I was doing MA psychology, I was going through the life, history of Erik Erikson. I think Erik Erikson, first of all, what inspired him? That inspired him is his own, complex childhood, which was marked by the question about identity. I think if we know that he came up with the word identity crisis, it was not anyone else. It was his own identity which was in a crisis situation. How? He was a German-born but American citizen, psychoanalyst and psychologist. Now, I will not go into much of the details, but giving you the bit of idea, he was a Jewish staying in German in the born before the World War II. So we all know the Nazis thing, etc. Along with that, his identity about because of his father, like biological father, people were not aware of it. So he had like so much confusion in adolescent age that he got happy when he has changed his name, his stepfather name, etc. He was not able to accept in the life, and he got happy with himself when he changed his name to Erikson, which was the name invented by himself. So, I mean, this was the one part. Second part is he did not have a formal training in the beginning. He was an art therapist, art, he was a love art person, drawing, etc. But then he somehow in the life journey, he came in contact with Sigmund Freud, daughter, who helped him to understand, who acknowledged his, potential or capacity to talk to the children nicely. And later on, he got all the formal training, etc. in this field, and was impressed by the, or I could say influenced by Sigmund Freud, id, ego, and सुपर इको। बट ही से नो, सारा का सारा साइकोसेक्सुअल वाली बात नहीं है। उसमें फिर भी एक पर्सन की प्रोग्रेशन एज ए सेल्फ, वो सेड कि ऐसा ईगो सिर्फ ये नहीं है कि इड ईगो सुपर ईगो बस सेक्सुअल नीड्स के बस पे चलती है, नहीं। इट इज ए पर्सन्स प्रोग्रेशन एज सेल्फ। सो I like this statement, sir, if you pay an attention to this. And I would, ask the viewers to pay attention. My analysis, which gave me self-awareness, led me not to fear being myself. कहते हैं ना कि वो एक भगवत गीता में भी एक संदेश है कि जर्नी ऑफ द लाइफ, जर्नी ऑफ सेल्फ, थ्रू सेल्फ टू सेल्फ। तो बहुत डीपर मीनिंग है इस बात का। सो बेसिकली, एंड सेकेंडली आई वाज इम्प्रेस्ड कि इन्होंने गांधी जी की हिस्ट्री पे लिखी, नॉट द वे हम जैसे देखते हैं, बट from psychological point of view, and he came to know his inner struggles,
that has shaped his action. So with all these kind of a person who has brought a theory of psychosocial things, I think it is a good for pediatrician like us and into who are also going into the adolescent pediatrics to know that, so that we would not want that our adolescent, teenage, the young youth should go into the stage of a identity crisis. So we can help them idea of doing this psychosocial development by Erik Erikson, sir. What is the psychosocial development and why it is important throughout life? राइट जैसे सर मैंने बोला कि क्योंकि हम समझेंगे तभी हम आज के पेरेंट्स में, स्पेशली जो न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं और फैमिली में कोई भी होता है ना, पंचतंत्र की कहानियां तक भी बताने वाला नहीं है, सब लोग मोबाइल में, डिजिटल एरा में, फॉल्स लाइफ में जी रहे हैं। तो इम्पोर्टेंस तो इसलिए है कि ये साइकोसोशल डेवलपमेंट अगर हम जानेंगे तो हम अपने एज ए पीडियाट्रिशियन हम अपने चिल्ड्रंस जो हमारे पास आ रहे हैं उनकी हेल्प कर सकेंगे, एंड ऑल्सो अपनी फैमिली में भी और इंडिविजुअल वे में भी, इफ वी नो दिस थिंग साइकोसोशल डेवलपमेंट, तो हम हेल्प कर पाएंगे। बट वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, Erik Erikson has defined this psychosocial development that this basically it is a connection of the mind with the social society. So social changes. So mind means thoughts and feelings, and social means the society changes. So it can say that it is a person's mind and social life which help them to grow and change over time. That is a psychosocial development. Words भी बताते हैं ये। और अगर हम इसको थोड़ा सा फॉर्मल डेफिनेशन में जाएं तो डेवलपमेंट ऑफ ए पर्सन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनवायरनमेंट इन विच दे आर लिविंग and figuring out how environment relates to them, their behavior, and also relations with others. So, as far as Erik Erikson has said, that personality goes across various stages. Now, each stages has a challenge और a turning point जिसको भी बोल सकते हैं, जिसको साइकोलॉजिकल क्राइसिस भी बोल सकते हैं और जिसको कंफ्लिक्ट भी बोल सकते हैं। आई लाइक द वर्ड कंफ्लिक्ट, क्योंकि कंफ्लिक्ट से थोड़ा सा लगता है ना कि ये थोड़ा सा चीज ऐसी है जिसको कि मतलब ठीक होना चाहिए, वो एक कंफ्लिक्ट जो है वो ठीक होना चाहिए। सो ये कंफ्लिक्ट या चैलेंज, इफ इट इज हैंडल्ड वेल, देन पर्सन डेवलप्स ए पॉजिटिव क्वालिटी. If it is not, then they may struggle with that area, that may face difficulty, which we will come to know in the subsequent talk. Now, this psychosocial development, अगर हम इसको simple words में बोलें, तो it is like a chance to grow well, at the same time a risk of failure as well. तो ये दोनों चीजें हैं साथ by साथ. But the good point is, even if it is a negative outcome, it can be revisited and then readdressed also throughout the lifespan. In this way, by readdressing or by revisiting, we as a counselor may help our new generation if and when need arises. So this is just a slide which we are going to talk in the whole of the show. I just give one example in this slide. Rest of the slides, for example, here it says infant to 18 month, the psychological crisis जो अभी हमने बात की थी टर्निंग पॉइंट की या स्टेज की, वो होता है ट्रस्ट या मिसट्रस्ट, और जिसके बाद अगर ये सेटल हो जाए अच्छी तरह से तो जो वर्च्यू डेवलप होता है वो होता है होप। तो सर आई थिंक मेरे ख्याल से मैं समझा पाई हूँ कि क्या काफी अच्छे से बताया है, काफी अच्छे से आपने समझाया है। मेरा अगला सवाल था कि व्हाट डज मीनिंग ऑफ वर्च्यू ऑफ होप इन अ न्यू बॉर्न? राइट, जैसे हमने बोला वर्च्यू ऑफ होप, देयर आर टू थिंग्स। अगर मैं दो सेंटेंस बोलूं, एक तो होता है बेबी आया है, वेलकम हुआ है, सो बेबी हैज कम इनटू, और एक होता है बेबी इज थ्रोन इनटू द वर्ल्ड। थोड़ा टफ सा वर्ड है, बट इस वाली स्टेज को हम वर्च्यू ऑफ होप को समझने के लिए हम न्यू बॉर्न लेते हैं, द न्यू बॉर्न हु इज बॉर्न। नाउ as far as psychosexual development, they say that oral stage, as far as Sigmund Freud stage is concerned, and main thing is like sucking and feeding are the two things which are important for a child. Now, what does this feeding? Feeding is important for survival, of course.
If a baby is born and his or her needs are taken care by the parents. For example, he's hungry. Hunger cues are being understood by the parents and they give them a feed. Or sometimes it is just that he is having a potty, he's passing urine, and all these needs are being understood by the parents. So basically, parents are responsive, not too much overprotective, that not every cry they are, giving him milk. No, which nowadays parents actually do that. They think that every cry is for a hunger and baby is hungry. This I come across many of the patients, which they tell me, the parents which tell me. So he get adjusted. So now, as far as psychosocial development says, that if the baby is got a good care, he will be is okay that this place is a I can live here. So he develops a hope to live, which is at the psychological level. बच्चा बता नहीं पाता है, but हमको समझना पड़ेगा ये बात. Similarly, if a baby is who is not due to whatever reason is not being taken care, चाहे फैमिली का इश्यूज है, चाहे फैमिली के कंफ्लिक्ट है, अनवांटेड चाइल्ड है, या फिर सिंगल मदर है, वट एवर रीजन, इफ इट इज नॉट बीइंग टेकन केयर, तो ही मे डेवलप मिसट्रस्ट कि भाई दिस प्लेस इज there is no hope in living. That may happen. Now, these are the extreme stages, and all the stages of development comes in between two. So we can help कि इस तरह से अच्छी केयर देने से बच्चा को, अगर the point is for the parents to understand is कि अगर उसको अच्छी केयर, अच्छी मतलब ना टू प्रोटेक्टिव ना टू रेस्ट्रिक्टिव, अच्छी केयर मिल जाए तो वो एक इस संसार में आया है तो वो एक जीने के लिए एक उसको अच्छी आशा मिल जाएगी, और दैट इज कॉल्ड एज ए वर्च्यू ऑफ होप, सर. So we proceed further that what happens when a child is told do not do that or you will spoil it. हमेशा हर पेरेंट्स को देखते हैं ये नहीं करना, आपको ये नहीं करना है, तुम बिगाड़ दोगे ये, तो हाँ जी, उसमें what happens to the child development? Explain with राइट. the example. सो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि बहुत कॉमन होता है. ये बात बहुत छोटी सी लगती है, ये मत कर, वो मत कर, वो मत कर. मैं एक्चुअली कई बार हाँ. कहती हूँ कि पेरेंट्स को आजकल, जब से काउंसलिंग में आए हैं, पहले नहीं कहते थे, कि आप अपने दिन में ना एक कॉपी ले लो और उतने सेंटेंस में ये देखो कि कितनी बार आपने बच्चे को नो 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 कहा है. तब पेरेंट को समझ में आता है कि अरे, मतलब ये हुआ है बात. तो एक तरीका यस को होता है उनसे ओपन अप कराने के लिए. दिस इज द वे आई गो विद दिस. हाँ. और दूसरा होता है स्पॉइल. नाउ इस वक्त का आंसर मैं दूंगी एक लाइन से. जो ये स्टेज होती है, ये भी मतलब साइको सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं समझाना चाहूंगी, एंड एज वेल एज साइको सेक्सुअल पॉइंट ऑफ व्यू से. ये स्टेज हो जाती है कि इसमें एज पर एज सिगमंड फ्रेंड इज कंसर्न, उन्होंने बोला है कि दिस इज कॉल्ड एज ए एनल स्टेज, because this point of time the anal area is the focal of pleasure for a child. जैसे सकिंग था पहले फेज में, ओरल फेज में, एनल फेज में ये एक प्लेजर का एरिया होता है बच्चे के लिए. बट एट द सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से हम जाएं तो वो ही लर्न्स टू रिस्पॉन्ड टू सम ऑफ द डिमांड्स ऑफ द सोसाइटी. और एरिक्सन जी ने क्या किया, इन्होंने ये वाला फेज जो कि 18 मंथ से 3 इयर्स तक रहता है, इन्होंने इसका कंफ्लिक्ट जो डिसाइड किया. कंफ्लिक्ट किसका है? ऑटोनॉमी वर्सेस शेम और डाउट. जस्ट ध्यान दीजिएगा इस बात पे. कंफ्लिक्ट है सोशल स्टेज पे, ऑटोनॉमी, शेम और डाउट, इन दोनों के बीच में. और उन्होंने इसको रिलेट किया सेकेंड ईयर ऑफ लाइफ में टॉयलेट ट्रेनिंग के साथ. तो इसका क्या मतलब है कि सोसाइटल डिमांड्स है कि बच्चा बिहेव करे एक प्रॉपर तरीके से. मीन्स उसको कब जाना है यूरिन के लिए या पॉटी के लिए वो हमें बता दे. कोई रिलेटिव आए हुए हो तो उनके सामने ना करे. ये एक हर पेरेंट की भी और इवन सोसाइटी में भी, भाई पॉटी सुसु आया है तो बच्चे को जाकर के बाथरूम में करना चाहिए, वो है डिमांड. लेकिन बच्चे को प्लेजर मिलता है उसको होल्ड करने में स्टूल को, या अपनी मर्जी से पास करने में. जब वो अपनी मर्जी से पास करता है, एक्सपेलिंग वाला पीरियड बोलते हैं इसको, बोलते हैं मेसिव हो गया, मेस्सा हो गया, या एक्सपल्सिव हो गया. रिटेंटिव वाला पीरियड होता है जैसे कि वो होल्ड, बहुत ही ज्यादा होल्ड कर रहा है. अब अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रेड के हिसाब से
अगर पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा भैया ये पॉटी ट्रेनिंग के लिए जी जान लगा देते हैं, तो बच्चा जो है ना, वो हो सकता है परफेक्शनिस्ट भी बन जाए बाद में, लेकिन बहुत ज्यादा वो रिटेंटिव वाले मोड में चला जाता है, मींस रिजिडिटी वाले मोड में। और एक्सपेलिंग वाले में अगर बिल्कुल केयरलेस है, जब करता रहे, तो वो केयरलेस वाले मोड में आ जाता है। ये तो एक एस्पेक्ट हुआ सिगमंड फ्रेंड जी का। लेकिन इसी चीज को ही अगर हम एरिक्सन जी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि चाइल्ड ऑल्सो इवेल्युएट हिमसेल्फ। हम शुरू से ही बोल रहे हैं कि ये जर्नी जो है वो जर्नी ऑफ सेल्फ थ्रू सेल्फ है। तो चाइल्ड ऑल्सो इवेल्युएट हिमसेल्फ। अभी वो बाहर की बात अलग है, लेकिन ही ऑल्सो इवेल्युएट हिमसेल्फ। तो अब अगर उसने पॉटिंग करते वक्त माँ ने बोल दिया, मान लो किसी रिलेटिव के सामने भी हो गया, मदर ने बोल दिया इट इज ओके, वी विल लर्न इट, यू विल लर्न इट, हम इसको साफ कर लेते हैं, तो बच्चे को कोई शेम या डाउट नहीं आता। लेकिन अगर इसी में ही अगर उन्होंने बोल दिया यू स्पॉइल्ड इट, तुमने खराब कर दिया, कपड़ा खराब कर दिया, मेरी इज्जत खराब कर दी लोगों के सामने, ये गड़बड़ हो गई, अब उसको शेम और डाउट में चला जाएगा। या डोंट डू इट, नहीं करना नहीं करना, तो वो उसको डाउट आ जाएगा। सो वो शेम और डाउट आ जाएगा अगर ये जो दो वर्ड्स हमने शुरू में सर जो आपने पूछे वो अगर हम करते हैं। लेकिन अगर उसको सेंसिबल वे से हैंडल किया गया, तो वो एक ऑटोनॉमी मतलब इंडिपेंडेंस डेवलप हो जाती है। तो वो इंडिपेंडेंस से हाँ मैं कर सकता हूँ, ही फील गुड एंड वैल्यूएबल। और जब वो वैल्यूएबल वाली फीलिंग आती है तो जीने की इच्छा भी पैदा होती है। अभी तो जीने की आशा पैदा हुई थी, अब जीने की इच्छा मतलब वर्च्यू ऑफ विल ऑल्सो डेवलप, जो कि सेकेंड स्टेज ऑफ द चिल्ड, सेकेंड स्टेज 18 months to 3 years। तो हम पेरेंट्स को समझा सकते हैं कि ऐसे शब्द ना बोलें, बल्कि उनको फर्म वे में समझाएं। हाँ जी सर। What might happen if the child feels guilty about trying new things? गिल्टी, सर वही, अब ये भी हम उसी का ही कंटिन्यूटी में ही चलते हैं। जैसे कि ये फेलिक स्टेज है 3 to 6 years, which is by the psychosexual development. It is a self stimulation, and nowadays actually I also see many of the parents of girl child also are coming up, where they explain that it looks like a seizure but which is a self stimulation. So nowadays I'm getting that many. It was more common in the boys, or maybe more obvious in the boys, एंड पेरेंट्स हमारे पास आते हैं कि बच्चा टच करता है अपने प्राइवेट पार्ट को बार बार। सो दिस एज इज एट 3 to 6 years। नाउ इट इज ए सेल्फ एक्सप्लोरेशन। अगर हम जाते हैं साइकोसेक्सुअल साइकोसोशल डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल गिल्ट इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, बिकॉज एट दिस स्टेज नाउ इट इज कंटिन्यूटी ऑफ दैट ऑटोनोमी। वो जो इंडिपेंडेंस मिली थी थोड़ी थोड़ी, नाउ ही takes the initiative. For example, he starts exploring. ये तो साइकोसेक्सुअल पॉइंट ऑफ व्यू से तो सेक्सुअल डेवलपमेंट है, बट फ्रॉम सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से he starts asking so many questions, ये क्या है, क्यों है। एंड देन साइकिलिंग अगर बच्चे हैं, पेरेंट्स है, सिखाना चाहते हैं, और आजकल तो लोग स्विमिंग भी ले जाते हैं छोटे छोटे बच्चों को। सो उस तरह से सिखाते वक्त अगर उसकी क्वेरीज आर सॉर्टेड आउट और बता दिया जाता है उनको अच्छे से, पेरेंट्स बता देते हैं, तो वो उस इनिशिएटिव को कैरी फॉरवर्ड करता है। सो अब अगेन कमिंग द चाइल्ड सेल्फ इवैल्यूएशन। अब यहाँ इवैल्यूएशन किस तरह से होता है कि ही इवैल्यूएट्स अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वालिटी ऑफ द एक्टिविटीज विच ही इज गोइंग टू डू। मीन्स साइकिलिंग जाना है, स्विमिंग जाना है, या कुछ भी घर में मम्मी के साथ खाना बनाने में हेल्प करनी है, तो मैं ऐसे करूंगा ऐसे करूंगा। दैट इज वन पार्ट, क्वालिटी ऑफ। उसके बाद वो इवेलुएट करता है कि व्हेन द पार्ट इज बीइंग डन। अब व्हेन द पार्ट इज बीइंग डन मींस अब माँ बाप से क्या मिला, क्यों किया, खराब कर दिया, ये कर दिया। इफ he gets the negative responses from the parents या society या grandparents, तो what happens is he may go into the guilt कि भाई ये इनिशिएटिव लेना मेरा सही नहीं था। और if he get that responsive parenting, as I already told, कि उसकी क्यूरोसिटी को एक लिमिट तक, अगेन ना टू प्रोटेक्टिव ना टू रेस्ट्रिक्टिव, बट अगर उसको शांत किया जाता है, तो देन ही कैन डेवलप ए वर्च्यू जो कि पर्पस।
because he was learning, he was doing the things which were being appreciated by the parents, his initiative, and there is no guilt when he has done it. So the purpose, virtue of purpose is developed कि yes, my life has a purpose. तो hope भी हो गया, will भी हो गई, purpose भी हो गया. तो then let's see what next. So after they develop the purpose. बहुत ही बढ़िया जा रहा है. हाउ कैन टीचर्स एंड पेरेंट्स हेल्प द चिल्ड्रन of age 6 year onward to pre-teens, especially those who feel not good enough? राइट सर. सर ये ना बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं कहूँगी स्पेशली क्योंकि हम लोग और आप तो सर अडोलेसेंट फील्ड के आई थिंक बिगनर्स हैं. तो अब तक पता नहीं सर आपने कितने अडोलेसेंट और कितने पीडियाट्रिशियंस और मतलब कितने बच्चों को क्या बोलूं मैं पोते पोतियों को गाइड किया होगा आप. पर मैं फिर भी एक छोटी सी कोशिश करती हूँ स्पेशली फॉर आवर पीडियाट्रिशियंस बताने की कि क्यों ये इम्पोर्टेंट है नॉट गुड इनफ. क्योंकि ये वाला टाइम जो है दिस इज एज फार एज अब साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट साइड में चली गई, वो लेटेंट पीरियड में चली गई फ्रॉम 6 years ऑनवर्ड टू प्यूबर्टी. स्कूल एज टाइम होता है ये, एंड चाइल्ड कंटिन्यूज टू ग्रो फिजिकली. Sexual urges are relatively inactive at this point of time, and child energy is challenged into social and achievement related. This is very important. ये 6 year onward है. अब 6 year onward में बच्चे का मेन फोकस जो हो जाता है वो क्या हो जाता है कि उसको अचीवमेंट चाहिए, एप्रिसिएशन चाहिए. तो अब इस वाले एप्रिसिएशन को हम क्या बोलते हैं इंडस्ट्री. यहाँ पे कंफ्लिक्ट क्या होता है क्योंकि साइकोसेक्सुअल तो साइड में चली गई, अब साइको सोशल डेवलपमेंट पीक पे है. इस पीक का क्या मतलब है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी. व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है बच्चा अब एक्सेल करना चाहता है, वो स्कूल में पढ़ाई में जाना चाहता है, किसी भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में डिपेंडिंग अपॉन द एनवायरनमेंट. अगर वो एजुकेशन में भी नहीं है तो वो घरों में जो इवन मैं देखती हूँ छोटे छोटे हमारे जो स्ट्रीट हॉकर्स होते हैं उनके बच्चे हैं वो इफ आई रिमेम्बर मतलब फूल वाला है हमारे सर घर के साथ में, तो वहां पे उनके बच्चा इतनी अच्छी तरह से बार्गेनिंग करके वो फूल बेच रहा था. तो वो भी एक कला है मैं ये बोलूंगी. तो हाँ, बिल्कुल. मतलब ऐसे था कि उसको देख के मुझे लगा कि ये तो बड़ी जल्दी बिजनेस सीख रहे हैं और हम तो अभी तक नहीं सीखे. इतना लगा ऐसा मुझे. सो कहने का मतलब मेरा ये है कि वो किसी भी में चाहे वो हाथ का काम है, स्किल्स है, ओरिएंटेड है, तो वो अब एक्सेल करना चाहता है. बट एट द सेम टाइम उसकी इस एक्सेल में साथ कौन दे रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब साथ सिर्फ पेरेंट्स नहीं है, अब सोसाइटी भी है, उसके पीयर्स भी हैं, टीवी भी है, डिजिटल मीडिया भी है. सो ये सारे इन्फ्लुएंस करते हैं. वाई व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो दैट दिस एज इज ए टाइप जहां पर एक दे आर डेवलपिंग ए न्यू ईगो सेंट्रिज्म बोलते हैं वर्ड. दिस इज नॉट द ईगो जो प्रीवियस वाला था इड ईगो सुपर ईगो. नो, दिस इज ए न्यू. न्यू मीन्स न्यू बट थोड़ा सा होता है सेंसिबल इनफ है. इसका मतलब ये है इस टाइम पे क्या होता है दीज आर द नीचे विच इज सेज डेवलपिंग न्यू ईगोसेंट्रिज्म. It has got 4 stages which I have written in the slide also. This says social informational. Social informational means 4 to 9 years. He is aware about others' point कि हाँ किसी ने कहा है but does not actually understand. दिमाग तक नहीं जाता है, सिर्फ कान तक बात कही है अभी. फिर जैसे एज बढ़ती है 6 year onward, अब क्या था कि सेल्फ रिफ्लेक्टिव. अभी तक सिर्फ इंफॉर्मेशन जा रही थी. सेल्फ रिफ्लेक्टिव इज द टाइम 6 to 12 years, 12 years तक. नाउ ही कैन सी अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू. मतलब ही नोज हिज पॉइंट ऑफ व्यू, ही कैन सी दूर से डिटैच्ड. इट विल नॉट टेक हिज पॉइंट. दैट इज व्हाट इट मींस सेल्फ रिफ्लेक्टिव कि ठीक है ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये उसका पॉइंट ऑफ व्यू है. ये है 6 to 12 years. म्यूचुअल आता है 10 years ऑनवर्ड शुरू हो जाता है कि नाउ ही कैन अंडरस्टैंड ओके हिज दूसरे बंदे का इस बारे में पॉइंट ऑफ व्यू ये है तो क्यों है. अब वो रीजनिंग आ गई तो वो अगर उसको अच्छा लगेगा तो वो ले भी लेगा, नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं लेगा. कि म्यूचुअल स्टेज वाले में आ गया. अब सोशल एंड कन्वेंशनल फिर आ जाता है 12 year ऑनवर्ड कि नाउ दे कैन एनालाइज इन एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स. दे नो इट हिज पर्सपेक्टिव इज राइट बट आई डू नॉट वांट टू एक्सेप्ट इट बिकॉज इट डज नॉट सूट मी. So he can make decisions accordingly.
सो ईगो इज देयर, स्लाइट ईगो, बट ईगो की पॉइंट्स है कि एट वन पॉइंट ही डज नॉट अंडरस्टैंड अदर्स, मेरा तो मेरा चीज है, बट दूसरे टाइम पे वो दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझा मेरी चीज है। तीसरे पॉइंट में म्यूचुअल में, अच्छा आपकी चीज है ये मेरी चीज है, मुझे आपकी चीज ठीक लगती है तो मैं ले सकता हूँ, वो म्यूचुअल हो गया। और चौथे में तो फिर वो स्मार्ट बोलो, आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में कैसे एग्जिस्ट करेगा, वो वाला स्टेज भी मीन्स सेल्फ, नॉट ओनली इगोइस्टिक बट सेल्फ सेंट्रिज्म भी बोलते हैं, या थोड़ा सा आज की दुनिया में बोले तो सेल्फिशनेस भी आती जा रही है एज पर सोसाइटी द वे इट इज गोइंग ऑन। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इस वाले क्राइसिस में जहां पे चाइल्ड एक्सेल करना चाहता है स्मॉल स्मॉल अचीवमेंट्स में, फॉर एग्जाम्पल स्कॉलेस्टिक, आज मेरे मार्क्स इतने नंबर आए, इसमें मैं एक एग्जाम्पल दूंगी। वन ऑफ माई रिलेटिव एक बार हमारे घर आए, तो सेकंड आया था वो, वैसे बहुत ही वेल स्टूडेंट, बहुत छोटी सी, मुझे याद है 5वीं या 6ठी क्लास में होगा, तो आया वो एंड सेकंड आया। तो आई वॉज द ओनली वन, आई सेड कॉन्ग्रेचुलेशन। तो भैया बोलते कि जहां भी गया है ना सबने ये बोला फर्स्ट क्यों नहीं आया, और सिर्फ आप ही पहले बंदे हो जिन्होंने इसको बोला कॉन्ग्रेचुलेशन। सो That is कितनी the positive way. हाँ जी, मतलब वो सेकंड आया वो नहीं अप्रिशिएट करा, फर्स्ट क्यों नहीं आया, तो ये हमारा होता है नॉट गुड इनफ। इनफ है फिर भी उसको नॉट गुड इनफ बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो। सो ये जो वर्ड्स हैं, सो बेसिकली, और स्पेशली व्हाई आई एम सेइंग दिस एज 6 to 13 या 12 इयर्स, ये सेल्फ एस्टीम बनाती है, बट एट द सेम टाइम बिगाड़ के इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की तरफ भी ले जाती है। सो इसीलिए एथलेटिक है बच्चा, या फिजिकल अपीयरेंस में अच्छा है, या वो ह्यूमैनिटी के काम में अच्छा है, कई बारी वन ऑफ द माय पेरेंट पेशेंट्स, कि ये बच्चा ना गाड़ी में जा, सॉरी रास्ते में भी जा रहा होता है ना, पत्थर पड़ा होता है ना तो वो पत्थर को भी उठा लेता है। सो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड है उसका, पढ़ाई में नहीं है तो नहीं भी सही। सो ऑल दिस थिंग्स इफ rightly told by the parents, guided by the society, by the teachers, by the doctors, we are also responsible. Not we, everyone around us. If they give them, then what happens is a competency. He feels that I am competent, and a good, self-esteem is developed. But if not, extreme cases may he may suffer inferiority complex, and nowadays they are going into depression, which was never earlier. We are not seeing kids going into depression, but now they are going. And I am getting patients, 13-year-old, 14 years, 7th class में इतने complexes में है school में that she stopped going to school just because she's not being acknowledged whatever she wanted the way it is. या friends है उनकी harassment और peers का pressure, she was not able to take it. So in that society, it is very important that this crucial age should be taken care by everyone so that they can develop the good self-esteem. तो इसलिए not good enough नहीं, थोड़ी कमी है, अगर है भी सही, अच्छा आपने इतना कर लिया, आगे करना है, सिर्फ शब्दों का हेर फेर है और कुछ नहीं है। अगर हमने एक बच्चे को दिल और शब्द, मतलब हमारा दिल भी मानना चाहिए उस बात को, और साथ में हमारे शब्द सही हो, तो हम बच्चे में एक सेल्फ एस्टीम डेवलप करा सकते हैं। हाँ जी सर। सो पेरेंट्स के लिए सर थोड़ा सा, हाँ थोड़ा ट्रैक से हम डिफरेंट तो नहीं हुए। So basically idea of all this psychosocial development was so that we as a pediatrician tell the parents that they should be responsive, reassure, and how to interact even with the newborn. तो एक newborn stage में help करेंगे, as they go into further autonomy वाली stage में, like 1.5 years to 3 years, we guide the parents that guide the parents that guide their children gently, encourage their curiosity, and build their confidence. Patience and consistency तो definitely चाहिए, firmness भी चाहिए, criticism, I would say don't criticize, but the constructive criticism I would say कि भाई वो देना चाहिए. Of course, love, attention and time definitely आज की डेट में बहुत बहुत जरूरी है, and role model as well. So in nutshell I can say guide your children gently, encourage their curiosity and build their confidence. ठीक है सर, आप ऐड करना चाहें तो सर प्लीज बताओ। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है। We should talk all positive things with the children rather than negative things, because when you talk positive, definitely they are encouraged
and they do not go in the depression or in the, और जब बार बार बोलेंगे कि ये नहीं करना वो नहीं करना तो वो करेंगे कब? हाँ Let जी, them do it so that if there is something wrong, you can positively you can aid the nice words to encourage the child so that he doesn't go into depression. And that is बिल्कुल, one of the reason that the children are going in depression. As you have given example of the second क्यों आए, first क्यों नहीं आए. हाँ That is जी, the thing, you know. One should appreciate what he has achieved rather than the negative thing, speaking negative, you know. That is actually that is actually imparting the psychosocial development of the डेवलप, children these days, you know, because of the society is always expecting more. अरे कब तक मोर पे चलोगे आप? बिल्कुल थोड़ा सर, है, थोड़े की जरूरत है, इतने पे चले तो सारी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं, शांति आ जाएगी आप. हाँ जी, वेरी वेल सेड सर, हाँ. बिल्कुल, नहीं तो राज कपूर बोलते थे ना, थोड़ा है, है थोड़े की थोड़े जरूरत की, हाँ है. जी, पर बिल्कुल हम लोग सही। हम ज्यादा की ओर भाग रहे हैं, इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है. पता नहीं सर कहाँ भाग के जाएंगे, अब समझ में नहीं कहीं आता नहीं जाएंगे, रहना यही है, जाना भी यहाँ से ऊपर ही है। है. हाँ जी, हाँ, यही तो सर अगला लाइफ था, है। why is adolescent considered a crucial period for the identity formation? हाँ। सर इसको तो मैं शॉर्ट में ही लूंगी, क्योंकि ये तो एक हाँ, बिग चैप्टर है अपने आप में ही। या और आई थिंक आपकी एक टॉक भी मैंने देखी है जिन इस पे आइडेंटिटी क्राइसिस पे, तो वो भी है सर, तो इसलिए सर ने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, तो मैं इस पे तो ज्यादा नहीं जाऊंगी। बस हाँ, मेन बात है कि ये अब puberty onward we all know that they attain maturity in psychosexual development, and sexuality fears, repressed feeling of earlier stage are once again exhibited at this point of हम्म, time. People learn to deal with members of opposite sex in socially and sexually mature way. And if we considered as identity versus confusion stage, that it is 12 to 18 years, Erickson believes, now, this is a very big statement. If the parents allow the child to explore, they will find their identity. But nowadays, what happens that children are comparatively not allowed to explore. Even the play we have, means if they are playing, that is also structured. There is unstructured plays. And now they are skating. They're going for skating, swimming, dancing, everything. But that is all somebody is there to teach them, not that they are openly doing. We used to play pakdan pakdai, pittu game, kitne the where we are learned, from uh, playing. So that is another, pitfall of the society development. Now, in this stage, I only say if the parents continually push them to conform to their view, this they may develop identity confusion. But if he is given his own, ability to explore it, they will definitely get their identity. Now, teen is also looking towards future in terms of employment, relationship, and families, and he is also wants to develop the desire to fit into the society. So, finally, if this stage is handled nicely by the parents and the society, again, society also has an important role, especially the school in this stage. uh, then he may develop his own good identity, and of course develop the virtue of fidelity, means his ability to commit to other and acceptance of others even with difference. So he comes to a stage of acceptance. But if it is not, then most of the time they entered into a confused state of mind, which affects their whole life, not only his life but also the people around him. So it is very important to take care of adolescents, which Adolescent Health of Academy is also, along with having senior members, Dr. M.K. Sinha, Dr. Swati Bhave ma'am, and Dr. Tuteja, Dr. C.P. Bansal, who had founded this AHA, also, are taking care of today's teens. तो सर ज्यादा नहीं बोल रही इसके बारे में सर. How did Jean Piaget contribute to your understanding of children thinking and let psychocognitive development? Again, this is once we have psychosexual development, psychosocial development. So not only this concept, I just brought this slide to tell that yes, a cognition is also important, which
affects a child's overall development, but will not go much into the details. For example, we have told about that from birth to 2 years, the first stage is called as a sensory motor stage. Here the baby learns through the senses, like touching, seeing, moving, etc. And gradually up to 2 years, he develops the object permanence. Means initially he does not know that if the object is removed, according to the newborn or when he is 6 months old, that object is not there. But later he develops that even if the object is not visible, it is still there. That is the meaning of object permanence. So he starts developing that, okay, the object exists even if I am not able to see it. That is what we consider cognition. Second is 2 to 7 years is pre-operational. Here the language development occurs and it is a egocentric thinking. Egocentric thinking is here that, for example, if a elephant is there and he is able to see the front part, he will say कि नहीं सिर्फ यही होता है. Elephant is like उसका सूंड. That is the part. It's a egocentric because he will not be able to has a whole overview of the situation or the thing. And of course the pretend play also starts. Then comes the concrete operational stage, which comes from 7 to 11 years. Here he starts developing logical thinking. Like, okay, for example, if a glass is long and able to have that water, and another glass is shorter one but a wider one, so both have equal amount of the water. If he was in 2 to 7 years, probably he would not be able to differentiate both of these can have the same quantity of water because it is a three-dimensional thing. But here, concrete operational, he will be able to say this is long and this is wide and short, so they can have an equal amount of the water. That is the meaning of a logical thinking. And he understands what is going on around him and he tries to solve his problem logically. And third comes the formal operational stage, which is 11-year onward. Here, of course, now they are developing abstract thinking. They have a, hypothetical thinking. They can imagine the things also or imagine the problems also. And of course, they start thinking scientifically and able to solve the complex. So gradually, once we know that this is their cognition, तो होता है ना कि समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझाना भी एक समझ है. तो अगर हमें पता लगेगा बच्चे का, समझाना भी एक समस्या है. हाँ, समझाना भी एक समझ है समझाना भी एक सर. समस्या है. समझ है. तो सर अगर समझ तो अगले है पर समझाना समस्या समझ तो है है. पर समझाना बड़ा मुश्किल है. समझाना मुश्किल है. तो उसके लिए ये है कि दूसरे की समझ को समझना पहले तो वो भी भी मुश्किल है, बट एक हाँ, एफर्ट किया है हमने इस टॉक के हाँ, थ्रू कि हम दूसरे बच्चों की स्पेशली समझ को हाँ, समझ सके. अब उस हाँ. समझ को समझाना कैसे है वो हम फिर हर कोई अपना अपना वो हमको भी तरीका समझना पड़ेगा. हमको भी वो समझ. हमको भी समझना पड़ेगा कि हमको कैसे ठीक है समझाना है. सर. आपको तो आप तो समझाने वालों में से हो सर. हाँ जी सर. थैंक यू सो मच. यू कैन स्टॉप दिस शेयर. टेक होम मैसेज. हाँ, तो अपने व्यूअर्स के लिए टेक होम मैसेज. आई होप जो मैं समझाना चाहती थी आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा. अंडरस्टैंडिंग once again I'll say take home message of the today's talk. Understanding psychosexual and psychosocial development means understanding mind and social life, how it grows and changes throughout the life. Human life proceeds through different stages. Dominant feature conflict, which is actually not a conflict but a turning point. If it is handled well, person will develop a positive quality, as we know. But important thing is, as a pediatrician, that after understanding this whole development of the children, I hope we can help the parents to guide their children so that the adolescent age not enter into the crisis state. Instead of that, they will develop an identity and be a good identity. Being a good identity, they can the today's youth can be fruitful to the growth of nation. That is what I can say, and we can provide age appropriate guidance to parents and teachers as well.
सर लास्ट थैंक यू। मैसेज तो आप दो सर। आप इसको डाउन कर, ये शेयर बंद कर दीजिए, अच्छा। स्लाइड शेयर बंद कर दीजिए। हाँ जी सर। हम्म। सुनीता जी, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा। एक प्राइमरीली अडोलसेंट में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हाँ जी। अगर इसको समझ लें, इस टॉपिक को समझ लें, तो पूरा अडोलसेंट समझ में आ जाता है समझ में कि आ जाए। ये हमारे बुजुर्ग जो एरिक्सन थे और जो हमारे टीचर्स ने हमको समझाने की कोशिश करी, तो पूरा एडोलसेंट यहीं से शुरू होता है। ह्यूमन डेवलपमेंट यहीं से शुरू होता है, और जब डेवलपमेंट ही बराबर नहीं होगा हाँ तो जी। डेफिनेटली मेंटल हेल्थ डिसीजेस बढ़ती जाएंगी। आज समाज में जरूरत है बच्चों को सुनने के लिए। जब आप उनको सुनेंगे, उनके विचार सुनेंगे, आज की तारीख में, आज के डेवलपमेंट में, आज की सोसाइटी में, आज के समाज में, आज की जो दुनिया जिधर जा रही है, उसको अगर हम सुनने की कोशिश करेंगे उनको, तो हमको समझ में आएगा। जब हमको समझ में आएगा तो हम उनके जवाब उस हिसाब से देंगे, ना कि पुराने हिसाबों से उनको जवाब देंगे। अगर मैं आज चाहूँ कि मैं जब टीनेजर था उस टाइम के जवाब में आज अगर बच्चों को दूं, तो मेरे ख्याल से मुझसे बड़ा गलत कोई इंसान नहीं होगा। आज को हमको आज को देखना है कि आज दुनिया किधर जा रही है, और हमें हमारे कान और दिमाग खुला रख के उन बच्चों को पालना है, जिससे उनका साइको सोशल डेवलपमेंट बहुत सही तरीके हो। मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरी टैगलाइन है, बातें गिरा देती हैं फासलों की हाँ दीवारें। जी। वो फासले जो है वो नेगेटिव हैं। वो फासले जो दीवारें हैं वो ना सुनने की दीवारें हैं। मैं बिल्कुल। एक्चुअली मैं उसमें ये कहना चाह रहा हूँ कि फासलों की दीवारें ये हैं कि जो हम सुनना नहीं चाहते बच्चों को, सिर्फ हम उनके ऊपर थोपना चाहते हैं। और बिल्कुल सबसे सही। बड़ी गलती समाज में आज यही हो रही है कि हम बच्चों की सुन नहीं रहे हैं, सिर्फ हम उनको गाइड करना चाह रहे हैं, हम हमारे हिसाब से चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो बच्चा बड़ा हो गया है आज, 15 साल का हो गया, 16 साल का हो गया, 10 साल का हो गया, 8 साल हो गया, वो हमारे हिसाब से बैठे और हमारे हिसाब से करे। तो बच्चे का डेवलपमेंट होगा कैसे जब तक वो सीखेगा नहीं, कुछ करेगा नहीं, कुछ बिगाड़ेगा नहीं। हम्म। बिगाड़ेगा तो कल सुधारेगा भी सही। उसको मालूम पड़ेगा कि मुझे बिगाड़ा है, तो मुझे इसको सुधारना है। तो ये साइको सोशल डेवलपमेंट जब ही होगा जब हम उनकी बातें सुनेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे, और उनको हिसाब से, आज के जमाने के हिसाब से उनको गाइड करेंगे। हाँ जी सर। यही हमारा संदेश है मेरे ख्याल से, साइको बिल्कुल सोशल सर। डेवलपमेंट का। और शायद बिल- एरिक्सन भी यही चाहता था कि सुनो, समझो और फिर बोलो। पर हम सुन नहीं रहे, सिर्फ हम बोल रहे हैं, और हम हमारी हमारी बातें कह रहे हैं, हम सामने वाले की नहीं सुन रहे। और यही सब जगह पूरी दुनिया में आज यही हो रहा है कि आप देख रहे हैं दुनिया का हाल क्या है। वो उसका बिल्कुल कारण सर। यही है कि हम दूसरे की सुन नहीं रहे हैं, सिर्फ हम्म। हम अपनी वाली बात कह रहे हैं कि हम क्या चाहते हैं, तुम क्या चाहते हो या दुनिया क्या चाहती है, उसको हम नहीं चाह रहे। नहीं सर, बिल्कुल बहुत ही डिफरेंट, मतलब एक पैटर्न हो गया लाइफ का, और लोगों का पता नहीं किस पता डायरेक्शन में। नहीं। हाँ, वही है। संस्थाओं में भी वो हाल है, घरों में भी यही हाल है, दुनिया का भी वो हाल हो रहा है। सब जगह यही हाल हो रहा है कि जो बैठ जाता है पावर में, वो किसी की सुनता नहीं है। पता नहीं। बस यही यही साइको सर्कल डेवलपमेंट जो है प्रॉपर नहीं है। शायद ऐसे लोगों का डेवलपमेंट बराबर नहीं हुआ होगा जो वो नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। लेट अस गो टू बी पॉजिटिव एंड डू आवर वर्क फॉर द सोसाइटी, एंड so that whatever we have learned in the life, we should return to the society. That is the aim of Dr. Tutaya Talk Show. अगर सबको पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब करिए। थोड़ी हमको मदद हो जाएगी कि हमारा लोड कम हो जाएगा, हम इधर और कंस्ट्रक्टिव वे में जा सकेंगे। धन्यवाद सुनीता जी, आपका, आपने टाइम स्पेयर करा। थैंक यू सो थैंक यू मच। सर। या थैंक यू सो थैंक यू सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी सर। मच।